Hello friends, today we are going to learn paper first chapter logic. So in logic, first we will see the definition of statement. See the definition of statement. A declarative sentence, a declarative or assertive sentence which is either true or false but not both is called as a statement. So statement means what? Which is a assertive sentence which is whose value is either ट्रू और फॉल्स, दोनों में से एक ही वैल्यू होगी उसकी, ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ, इज कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट. नाउ सी द एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल, प्लीज गिव मी अ पेन, which is a request type of sentence. Get out, which is a exclamatory. How beautiful she is, again exclamatory. Close the door, that is a command. Where are you going, which is a interrogative. 2 plus 2 is equal to 5. Now observe this, 2 plus 2 is equal to 5, which is a assertive sentence, and the 2 plus 2 is equal to 5, the value of this statement is a false. So this is a statement. Now Taj Mahal is in Agra, which is again assertive sentence. So number 6 and number 7 are the statement, but 1 to 5 statement sentence, they are third, which is a first sentence which is a command, request form. Second, command. Third, exclamatory. Fourth, again command, and fifth, that is a interrogative sentence. So first to fifth are not statement because they are not assertive. So what is a condition for statement? That the sentence should be assertive, and out of this 7 sentence, only 6 and 7 both are assertive, and their 6 number, the value of this statement is a false, 7 that is a true. Okay. Now compound statement. Compound statement. The statement are formed by combining two or more simple statement by using connectives. Okay. So you know connectives like and, or, if, then, if and only if, so that. So there are many connectives. Connectives, what is the function of connective? They joining two simple sentence. Okay. So the statement are formed by combining two or more simple statement by using connectives. They are called as a compound statement. अभी simple statement, ये जो हमने पहले देखा 6 and 7, they are the simple statement. Simple statement उसमें कोई connectives नहीं है. There is no connective in statement. They are called as a simple statement. Now and compound statement में सब connective. अभी देखो first example, प्रकाश and Karan are good friends. So which is a here connective, that is a and. ये दो sentence को join कर रहा है. Second sentence, if it rains then match will be cancelled. If and then will be connect this two statement. It rains, match will be cancelled. A person is happy if and only if he is successful. Here if and only if, which is a connective, join the two statement, simple statement like first statement, a person is happy, then second statement, he is a successful. Logical connectives. First, that is a not, which is also called as negation. Symbol will be like this, negation. Okay. If P is a statement that Meena is a beautiful, उसका निगेशन ऑफ पी कैसे लिखेंगे हम? मीना इज नॉट ब्यूटीफुल, इसमें नॉट ऐड करेंगे. ट्रूथ टेबल, अगर पी ट्रू है तो निगेशन पी क्या होगा? फॉल्स. अगर पी फॉल्स है तो निगेशन पी क्या होगा? ट्रू. सो दिस इज अ फर्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स. नाउ सेकेंड, दैट इज अ कंजंक्शन दैट इज एंड. सिंबल विल बी लाइक दिस. पी, वेदर इज वार्म. Q, sky is a clear. In symbolic form, this will be this can be written P and Q, and in weather is a warm and sky is a clear. है ना? P statement क्या था हमारा? Weather is warm, sky is clear. P and Q can be written like this.
एंड उसमें हम ऐड करेंगे वेदर इज अ वार्म एंड स्काई इज अ क्लियर. नाउ सी द ट्रूथ टेबल पी क्यू है ना. पी विल बी 2T 2F, क्यू अल्टरनेट TF है ना. नाउ P एंड Q T TF F FTF FFF. The condition for and that if anyone is false then P and Q is false. अभी इसमें ऑब्जर्व करो, देखो ट्रूथ टेबल में कि दोनों में से एक भी फॉल्स है तो स्टेटमेंट क्या आता है, फॉल्स. कन्वीनियंटली अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में से एक भी फॉल्स है एंड में तो स्टेटमेंट फॉल्स आता है, और दोनों ट्रू है तो ही स्टेटमेंट ट्रू आएगा, P एंड Q. ओके. नेक्स्ट दैट इज अ डिसजंक्शन, और उसका सिंबल V की तरह है. देखो P पेरिस इज इन इंग्लैंड, Q रोम इज इन इटली. P और Q पेरिस इज इन इंग्लैंड और रोम इज इन इटली. P और Q ये क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में है. हाँ, उसके हमने भी स्टेटमेंट में P पेरिस इज इन इंग्लैंड और रोम इज इन इटली. नाउ सी द ट्रूथ टेबल P Q है ना. P 2T 2F, Q TF TF, P और Q T T T F. अभी इसमें देखो कैसी कंडीशन है, इफ एनीवन इज अ ट्रू देन द स्टेटमेंट इज अ ट्रू. अभी ये यहाँ पे देखो दोनों में से एक भी ट्रू है ना तो स्टेटमेंट ट्रू आएगा. एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन फॉर एंड है ना. और में क्या है, दोनों में से एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट ट्रू. देखो T T T आ रहा है, TF T, FT T, FF F. और इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो कि दोनों F है तो ही F आएगा और में. नाउ कंडीशनल. नेक्स्ट लॉजिकल कनेक्टिव्स. कंडीशनल. कंडीशनल इज ऑल्सो कॉल्ड इफ देन. सिंबल विल बी एरो, सिंगल एरो ये सिंबल इसका. P लता इज हार्ड वर्किंग, शी इज सक्सेसफुल इन लाइफ. P और P implies Q. If there is also called as a P implies Q. P implies Q can be written as like this. P implies Q. If Lata is a hardworking, then she is a successful. Then she is a successful in life. So which is a conditional statement, P implies Q. If Lata is hardworking, then she is successful in life. Okay. Truth table है ना. तो ट्रूथ टेबल P Q, P implies Q है ना. T T F F ये सब में कॉमन रहेगा, T F T F. So what is the condition for that? T implies F is a false. इसमें क्या है, P T होना चाहिए, Q false होना चाहिए तो ही स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट इज अ ट्रू. देखो ऑब्जर्व करो, T T क्या आ रहा है, T implies F which is a false. मतलब P T होना चाहिए, Q F होना चाहिए तो स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स. अदरवाइज स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू. देखो अभी F T में क्या आ रहा है, T, F F में T. ओके. सो कंडीशन फॉर दिस T implies F is a false, otherwise the statement is a true. Last one, biconditional. If and only if. उसका सिंबल देखो, टू साइड एरो यहाँ पे. P हरी इज रिच, Q he owns a car. P double implies Q. हरी इज रिच if and only if he owns a car. कंडीशन बाय कंडीशनल ना. बाय कंडीशनल में दोनों साइड से वो ट्रू होगा. अभी ट्रूथ टेबल उसका देखो, P Q, P T T F F, Q T F T F, T T T T F F, F T F F F T. इसके लिए कंडीशन क्या है, when both are same the statement is a true. मतलब दोनों T है, दोनों false है तो स्टेटमेंट क्या आएगा, ट्रू है ना. डिफरेंट है तो स्टेटमेंट कैसा आ रहा है, फॉल्स. ओके. नाउ सी अगेन, नॉट में क्या देखा हमने, निगेशन में T P T है तो उसका निगेशन क्या आएगा, फॉल्स. यहाँ पे F है, F का निगेशन क्या आएगा, ट्रू.
कंजंक्शन एंड में क्या कंडीशन है कि दोनों में से एक भी फॉल्स है तो स्टेटमेंट क्या आ रहा है, फॉल्स। और टी है तो ही टी आएगा एंड में। कन्वीनियंटली आपको जैसे ये लगे वो याद रखो। अभी डिसजंक्शन में डिसजंक्शन इज अ एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन, और उसका सिंबल भी इसका सिंबल भी वी के तरह है। अभी इसका ट्रूथ टेबल देखो, यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों में से एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू, है ना। एग्जैक्ट अपोजिट कंडीशन फॉर एंड का। इफ एनीवन इज ट्रू देन पी और क्यू इज अ ट्रू। कंडीशनल का देखो, कंडीशनल में क्या कंडीशन है हमारा, टी इम्प्लाइज एफ इज अ फॉल्स, अदरवाइज स्टेटमेंट इज अ ट्रू। मतलब पहला टी दूसरा एफ हो तो ही स्टेटमेंट क्या आएगा, फॉल्स, अदरवाइज स्टेटमेंट इज अ ट्रू। और बाय कंडीशनल में क्या है, बोथ शुड बी सेम, है ना। टी टी ए टी, एफ एफ टी, अदरवाइज स्टेटमेंट क्या आ रहा है, फॉल्स। ओके, सो इन दिस वे वी हैव सीन द लॉजिकल कनेक्टिव्स, 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स, एंड negation, and or if then and if and only if. P implies Q is the conditional, ये कंडीशनल है। P implies Q कंडीशनल स्टेटमेंट वी नो। तो उसका रिवर्स जो आएगा उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स। Q implies P is a converse. negation Q implies negation P contrapositive. जो कॉन्वर्स में जो दोनों है ना सिंबल, दोनों को अगर निगेशन किया तो कॉन्वर्स का क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रापोजिटिव। एंड व्हाट इज द इनवर्स, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है ना हमारा P इम्प्लाइज Q, दोनों निगेशन करके उसको क्या आएगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज कॉल्ड एज अ इनवर्स ना। देखो जो स्टेटमेंट है P इम्प्लाइज Q, उसको उल्टा लिखा हमने, Q इम्प्लाइज P, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वर्स। और कॉन्वर्स में, कॉन्वर्स जो है उसमें दोनों निगेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है हमारा, ओरिजिनल क्या है, P इम्प्लाइज Q, तो उसको दोनों को निगेशन करके क्या आएगा, निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q इज अ इनवर्स। अभी उस पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, सीधे एग्जाम्पल। इफ टीचर इज प्रेजेंट देन स्टूडेंट्स रन अवे। और उसका कॉन्वर्स, कॉन्वर्स क्या है उसका, Q इम्प्लाइज P, इसका P क्या है हमारा, टीचर इज अ प्रेजेंट, एंड Q क्या है, स्टूडेंट्स रन अवे। अभी यहाँ पे क्या आएगा कॉन्वर्स में, Q इम्प्लाइज P, है ना, Q इम्प्लाइज P, तो Q इम्प्लाइज P, पहले क्या आएगा Q, उसके बाद में क्या आएगा P, है ना। तो इफ स्टूडेंट्स रन अवे देन टीचर इज अ प्रेजेंट, Q इम्प्लाइज P। कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या है ये हमारा, निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P, है ना। इफ स्टूडेंट्स, अभी ये जो कॉन्वर्स स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ क्या करेंगे हम, नॉट ऐड करेंगे। इफ स्टूडेंट्स नॉट रन अवे देन टीचर इज नॉट प्रेजेंट। कॉन्ट्रापोजिटिव मीन्स व्हाट, कॉन्वर्स का जो निगेशन है दोनों सिंबल में उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। इफ स्टूडेंट्स नॉट रन अवे देन टीचर इज नॉट प्रेजेंट, इनवर्स। जो ओरिजिनल स्टेटमेंट में उसको दोनों में निगेशन। इफ टीचर, उसमें सिर्फ नॉट ऐड करेंगे हम। इफ टीचर इज नॉट प्रेजेंट देन स्टूडेंट्स नॉट रन अवे। ओके, सो दिस इज अ कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स। इसको आप ऐसे ही सीरियली याद रखो आप, कॉन्वर्स, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स। कॉन्वर्स क्या है, जो स्टेटमेंट है उसका रिवर्स स्टेटमेंट, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, कॉन्वर्स में दोनों निगेशन करके वो कॉन्ट्रा पॉजिटिव आएंगे, और इनवर्स क्या है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है उसमें निगेशन करके। सो सी द एग्जांपल, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉलोइंग। इट इज नॉट ट्रू दैट 4 + 3 इज अ रियल नंबर। 4 + 3 इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? Yes, obviously, which is a false, because 4 + 3i is which number? That is a complex number. So this is a false statement. अभी negation of we have seen in the negation of false क्या आएगा फिर? True, है ना? It is not true मतलब ये क्या है? Negation. It is not true that 4 + 3i is a real number. So negation of false, which is a true. So truth value of this statement is a 3. Next, 2 is a only even prime number and 5 divides
26. P is a T, Q is a false, है ना. 2 हमें पता है 2 दैट इज ए इवन प्राइम नंबर. 5 डिवाइड्स 26, है ना. तो पहला जो स्टेटमेंट है P क्या है यहाँ पे ट्रू एंड Q क्या है फॉल्स, है ना. 5 डज नॉट डिवाइड्स 26. therefore T and F और दोनों के बीच में क्या एंड है. T and F which is equal to false because in and we know that anyone is false then the statement is a false. Next, either 64 is a perfect square or 46 is a prime number. भी देखो फर्स्ट जो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ये क्या है, उसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा ट्रू, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है. 8 का परफेक्ट स्क्वायर आता है. और 46 इज अ प्राइम नंबर, ये क्या आएगा फॉल्स बिकॉज 46 इज नॉट प्राइम नंबर. ओके, सो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू आएगा और दूसरा क्या आएगा फॉल्स. और दोनों में क्या है हमारा और, है ना, दोनों में क्या है और. तो और टी और एफ. सो टी और एफ क्या आएगा टी, क्योंकि और में कंडीशन क्या है दोनों में से एक भी ट्रू है तो स्टेटमेंट क्या आता है ट्रू. ओके, नेक्स्ट वन 3 + 5 greater than 7 if and only 4 + 6 less than 10. अभी देखो यहाँ पे 3 + 5 which is 8 greater than 7 which is a true statement. Q is a false because 4 + 6 is a less than 10, because 4 + 6 is a 10. Therefore Q is a false. यहाँ पे T डबल इम्प्लाइज F, है ना. अब डबल इम्प्लाइज में क्या कंडीशन है, बोथ शुड बी सेम. वो दोनों अगर सेम है तो ये क्या आता है स्टेटमेंट ट्रू आता है. तो यहाँ पे क्या है दोनों डिफरेंट है ना. P इज अ ट्रू एंड Q इज अ फॉल्स. और इफ एंड ओनली इफ में दोनों सेम है तो ये ट्रू हमारा ट्रू आता है. ये क्या आएगा फिर फॉल्स. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. इफ P and Q are true, R and S are false, find the truth value of. अभी ये एग्जांपल सॉल्व करना है, हमें इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है. निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ R और निगेशन ऑफ Q और R. निगेशन P का वैल्यू क्या है T, P एंड Q T दिया है एंड R का वैल्यू क्या है फॉल्स. निगेशन फॉल्स और निगेशन ऑफ T और F. निगेशन ऑफ F क्या आएगा T. यहाँ पे निगेशन ऑफ T क्या आएगा F, है ना. तो निगेशन ऑफ T एंड T एंड में क्या है दोनों में से एक भी फॉल्स है तो क्या आता फॉल्स. अभी यहाँ पे क्या है दोनों ट्रू है तो क्या आएगा ट्रू. निगेशन ऑफ ट्रू और ये F और F ये क्या आएगा F. तो निगेशन ऑफ T और F, निगेशन ऑफ T क्या आएगा F. F और F विच इज इक्वल टू F.